Hello guys, welcome back to my vlog. So today we are heading to the airport and we are going to Varanasi via flight. So we have an Indigo flight to Varanasi today and we are going to visit Kashi Vishwanath temple. So this is going to be our first trip to Varanasi. We haven't been there before. So stay tuned till the end of the vlog, and if you haven't subscribed to my channel, do subscribe for more of such videos and press that like button if you like my video. So we have already boarded the Indigo flight. We were very late, so last minute we checked in. So the seats are quite comfortable and we are on our way to Varanasi. You want to show your laptop? You want to hide the password? So we bought few snacks on our way since we were very hungry. We skipped our lunch. So it was all overall a good experience. And Indigo, I like the best part is it is always on time. So we landed exactly on time. So sometimes even you land like before time. So we have approached the Varanasi city and we are just about to land. So we landed, took a taxi, now heading to our hotel. So guys, it is going to be a long journey ahead. I'm going to show you everything about this city, where to eat the best food. I will be taking you guys the hotels where I will be staying, the street food which we will be eating here. Also we will be taking you I will be taking you guys to Kashi Chaat Bhandar, which is very famous after the Ambani's wedding. So they went on Ambani's wedding from Varanasi. Kashi Chaat Bhandar team went there. So everywhere. So first we came here at this Litti Choka place where they serve beautiful, amazing Litti Choka, and then we came here at this beautiful hotel. So the name of the hotel is Broadway and they have a very nice restaurant inside. I will be giving you guys a tour of the restaurant. So my husband is doing the check-in formalities. In the meanwhile, I came here to order dinner since we were very hungry, and then we'll be checking in our room. So in this particular restaurant, they also serve the breakfast buffet, and it is a nice restaurant. It was like almost full. So the name is Amani Khas. Name of the restaurant is Amani Khas. So we ordered vegetarian Indian food and it was very nice and delicious, lovely food. And then we came in our room. So this is the room. It was a basic, nice 4-star hotel room. So but the twin beds were not very comfortable. They were very small actually. So I slept with my son and it was very difficult to sleep on these beds, and their like single bed was occupied. The single bedrooms, queen size bedrooms were occupied. So this is the day 2 and we are heading to Kashi Vishwanath temple, and this is my look. I'm already wearing this suit and having our breakfast. So breakfast again looks very delicious and it was actually very yummy, and they had a decent variety of options of breakfast. Now came in a room for a while and then we'll be heading to Kashi Vishwanath temple. So they have displayed this vintage car in their hotel lobby, and my son was very obsessed with this vintage car. So guys, we went in the morning, like early morning darshan of Kashi Vishwanath. Of course I can't show you
like inside of the temple because the photography is not allowed क्या there. कह रहे हैं The darshan is not very बाहर से difficult. तो बहुत अच्छा लग रहा है नॉर्मल लाइन भी होती है, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिक्योरिटी लाइन लेंगे तो आपके इमीडिएट दर्शन हो जाएंगे, बट इतनी हैसल है नहीं। नॉर्मल लाइन में भी आप लग के आराम से दर्शन कर सकते हो, में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आने के बाद वी आर चेकिंग आउट फ्रॉम दिस होटल एंड वी आर चेकिंग इन अनदर वन। तो हमने एक ऑप्शन ये देखा था। द नेम ऑफ द टेम्पल इज़ होटल गैंजेस एंड वो हमें इतना अच्छा नहीं लगा। देन वी केम हियर एंड इस होटल का नाम है होटल रिदम। देखिए अंदर से कैसा है। Shut up. नाइस रूम है यार। रूम तो सही है। ये ले देख अब सही है, बढ़िया है। इससे तो बढ़िया है। So guys, this was the room tour. This is the washroom and just look at the view from our window. It is so amazing, the outside view. And this hotel is on Assi Ghat. So Assi Ghat is very much visible from here and it is walking distance. Evening में आरती होती है. I'll be taking you guys at the evening आरती at Assi Ghat. और ये कितना अच्छा व्यू है हमारी विंडो से। रूम वॉज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, मतलब बड़ा है। दिस इज़ देयर टेरेस एरिया एंड जस्ट लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर। यहाँ से पूरा अस्सी घाट विजिबल है। आरती भी आपको वो अच्छे से यहाँ से दिखाई देगी। और रात में तो ये जगह इतनी अच्छी लगती है। दिस प्लेस इज़ ऑल लिट अप विद द लाइटिंग ओवर हियर एंड वेरी हैपनिंग प्लेस। इसके ऊपर भी एक छोटा टेरेस है, वहाँ से तो व्यू और भी ज़्यादा अमेजिंग है। लेट मी जस्ट गिव यू गाइज अ स्नीक पीक ऑफ दिस टेरेस एंड इवनिंग में यू गाइज कैन चिल आउट। और यहाँ पर कुछ लोग बैठ के इवनिंग में अपनी टी कॉफ़ी इंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। और यार लाइटें जलेंगी अभी रात को। क्या अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये। आप इसको छोड़ के उधर जा रहे थे मॉल के पास में, और पूरे घर दिख रहे हैं ना, यहाँ के यूपी के जैसे होते हैं। ऐसी घाट है ना पूरा। Do you like this place? 4-5 अभी जाएंगे, 4-5 सुबह जाएंगे। सो गाइज दिस इज़ अस्सी घाट और यहाँ पे हम थोड़ा देखने के लिए आए हाउ इज़ इट। अब तो वैसे काफ़ी क्लीन हो गया है। पहले तो ये सुनने में आता है बहुत ज़्यादा डर्टी रहता था। लोग थोड़ा ध्यान रख गए हैं टुवर्ड्स द क्लीनलीनेस ऑफ दिस प्लेस विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सो गाइज़ यहाँ पर इस कैफ़े में आप लोग ज़रूर आएँ व्हेन एवर यू आर कमिंग एट अस्सी घाट। So the name of this cafe is Green Ganga Cafe located right at अस्सी घाट। और इतना अच्छा व्यू है आपको यहाँ पे,
बाय द रिवर एंड यहाँ पे बैठ के आप इवनिंग में इंजॉय कर सकते हैं योर फूड। इस समय आफ्टरनून में तो इट्स क्वाइट हॉट बट इवनिंग में इट विल बी वेरी प्लेजेंट एंड दे हैव इन नॉर्थ इंडियन फूड पास्ता एंड ऑल, इटालियन फूड भी है, सो वर्थ गोइंग देयर। उसके बाद हम जा रहे हैं थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करने बट उससे पहले हम जाएंगे मंदिर एक इवनिंग दर्शन के लिए भी। और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए आई थिंक बेस्ट थिंग इज़ कि आप यू शुड टेक ई रिक्शा, ऑटो या नॉर्मल रिक्शा, बिकॉज कैब में तो आप फंसे ही रह जाएंगे। लेन्स आर क्वाइट नैरो एंड ट्रैफिक बहुत बहुत ज़्यादा होता है, सो एवरीबडी टेक्स ई रिक्शाज एंड ऑल। And I'm enjoying my ride on e-rickshaw along with my son Ayan. So it was very nice. So guys, this is the e-rickshaw Bridge Rama Cafe. Sorry, Bridge Rama Hotel, which apparently is a very very nice hotel of Varanasi. It's a 5-star property and mostly the hotel rooms are booked. और वहाँ से आप गंगा आरती भी देख सकते हैं लाइव। लोकेटेड नियर बाय दशाश्वमेव घाट विच इज़ वेरी फेमस। तो गाइस गंगा आरती के लिए दशाश्वमेव घाट इज़ वेरी फेमस, तो गंगा आरती के लिए आप इवनिंग में वहाँ ज़रूर जाएं। सॉरी मॉर्निंग में वहाँ होती है आरती, आप जाएं। उसके बाद वहाँ पे बोट राइड वगैरह होती है, तो आप बोट राइड ले सकते हैं। अभी इन द मंथ ऑफ नवंबर एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, बोट राइड एंड ऑल, बिकॉज रेन भी हो रही थी तो इसलिए। एंड दीज आर ऑल प्लेसेस फॉर शॉपिंग, आप यहाँ से बहुत कुछ शॉप कर सकते हैं। वील कम बैक टू दिस शॉप लेटर। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दशाश्वमेव घाट, और दूसरा अस्सी घाट में तो इवनिंग में भी होती है मॉर्निंग में भी, बोथ द टाइम, मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम होती है आरती। सो हम तो अस्सी घाट पे थे, सो वी अटेंडेड द आरती इन द इवनिंग। एंड ये है मणिकर्णिका घाट, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। दिस इज़ अनदर घाट। वैसे तो यहाँ पे पता नहीं कितने घाट है बट ये 3-4 फेमस घाट है। और यहाँ पर हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग का देखने के लिए, सिंस वी हर्ड यहाँ पे एक कचौड़ी वाली गली है अंदर, वहाँ की कचौड़ी और ये सब सब्ज़ी आलू ये सब बहुत फेमस है। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। यहाँ पे राइट हैंड साइड में मणिकर्णिका घाट है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो फेमस घाट। और यहाँ पे सारे आपको बनारसी पान की शॉप मिलेंगी, चलते चलते लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कचौड़ी आलू उस टाइप की शॉप्स मिलेंगी आपको, और बनारसी साड़ी की भी शॉप्स हैं। तो यहाँ पे स्ट्रीट शॉपिंग तो आपको पूरे बनारस में मिलेगी, बट देर आर फ्यू शॉप्स जो ऑथेंटिक हैं जहाँ आपको रीज़नेबल प्राइस में बनारसी साड़ी मिलती है, तो मैं वहाँ पर आपको लेके जाऊँगी। बट पहले हम करते हैं कुछ पेट पूजा। सो वी केम एट दिस बनारसिया रेस्टोरेंट विच इज़ नियर बाय काशी विश्वनाथ टेम्पल। वी केम हियर, और यहाँ पर हमने ऑर्डर की लस्सी विच वॉज़ वेरी नाइस, दैन कचौड़ी आलू, एंड दिस कचौड़ी केम विद ब्लैक चना विच वॉज सुपर डिलीशियस, और आलू की सब्ज़ी भी थी। दो चीज़ें मिक्स थी इसमें, तो something which I haven't eaten before and it was like worth eating। तो ये सब्ज़ी आई थी कचौड़ी, एक तो ये पूड़ी होती है कचौड़ी होती है, तो ये वाली पूड़ी के साथ आई ये आलू की सब्ज़ी एंड थोड़ी सी ब्लैक चने, एंड दोनों ही चीज़ें बहुत ही डिलीशियस थी। तो स्ट्रीट फूड तो वाराणसी का बहुत फेमस है, एंड देर आर फ्यू प्लेसेस जहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है। साथ में इन्होंने हमें जलेबी दी कॉम्प्लीमेंट्री, एंड मैं एंड में आपको लेके जाऊँगी सबसे बेस्ट प्लेस पे जो है काशी चाट भंडार। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड एंड तक। और जहाँ जहाँ भी हम जाएंगे, ये सामने है काशी विश्वनाथ टेम्पल, और यहाँ पे आसपास सब जगह प्रसाद की शॉप्स हैं, आप यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं अंदर चढ़ाने के लिए। और ऐसा कोई रश नहीं था अंदर मंदिर में जैसे कि होता है जनरली टेम्पल्स में। इट वॉज़ वेरी स्मूथ। हमने कोई वीआईपी एंट्री नहीं ली थी, दो वी थॉट वी विल टेक बट वी डिड नॉट। अंदर हमें सब कुछ स्मूथ लगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ही फेमस लस्सी की शॉप थी। देन वी केम एट दिस मल्टी क्यूजीन रेस्ट। सो द नेम ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज़ विश्वनाथम।
ये भी काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने था। और यहाँ पे आई जस्ट लव दीज पेंटिंग्स। इन्होंने पूरी वाराणसी के बारे में इन पेंटिंग्स के थ्रू बताया है, द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। और इन्होंने यहाँ पे जैसे दशाश्वमेध घाट पे आरती की फ़ोटो लगाई है। देन शिवा फोटोज़ आर देयर एंड लॉट्स ऑफ लाइक हिस्ट्री फ़ोटोज़। एंड हमने यहाँ पे लस्सी पी और एक कुछ स्नैक मंगाया। एंड इट वॉज़ वेरी हॉट आउटसाइड, सो वी जस्ट वांटेड टू सिट हियर। एंड अब हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने और देखते हैं स्ट्रीट शॉपिंग में क्या क्या अच्छा मिलेगा। सो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी। दुपट्टे वगैरह हैं तो आपके ये पास? एक शॉप दिखी, यहाँ पे चेक करते हैं क्या है। कम वाली दिखा, एक सेकंड रुक जाओ। ये है किस रेंज में? 250। और सिल्क में वैसे वाली नहीं, कम रेंज में ही चाहिए, जैसे किसी को देने के लिए चाहिए। ये 250। और ये क्या है? ये साड़ियाँ हैं, ये भी सारी साड़ियाँ हैं। ये किस रेंज में? ये सारी 1000 की रेंज में। और ये पोटलियाँ और बड़े वाले बैग और ये बड़े वाले आते हैं अभी, चलिए कलर अभी काल भैरव से आ रहे हैं। सो गाइस इस पर्टिकुलर शॉप पे, दो इट वाज अ वेरी स्मॉल शॉप, बहुत अच्छे रीजनेबल प्राइस पे दे वर गिविंग साड़ीज एंड ऑल। ऑब्वियसली 100% ऑथेंटिक तो नहीं होगी, बट गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए इट वाज परफेक्ट। देन वी केम एट दिस शॉप और यहाँ की साड़ीज़ बहुत फेमस और अच्छी थी, बट देन इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। मुझे साड़ीज़ पसंद आई थी विच दे सेड कि प्योर में है बनारसी, बट इट वाज ओवर प्राइज्ड मेरे अकॉर्डिंग। तो हम जाएंगे और दूसरी शॉप एक्सप्लोर करेंगे। सो एक ये शॉप, जैसे इस टाइप की स्ट्रीट शॉपिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत रीजनेबल सब कुछ था, लाइक दिस बनारसी ये वाली बैग्स एंड पोटलियाँ ऑल। कितने की है? 120। एक बार देख लेते हैं। ये दुपट्टे कितने के हैं? दुपट्टा है, अच्छा है दुपट्टा यार। गोल घर। सो गाइस यहाँ की बनारसी की स्ट्रीट्स जो है ना, इस पे घूमने में बहुत मज़ा आता है। जस्ट लुक एट हाउ नैरो दी स्ट्रीट्स आर। आप चलते रहो बस, धीरे धीरे मंदिर दिखेंगे आपको, स्ट्रीट शॉपिंग दिखेगी, स्ट्रीट फूड दिखेगा। सो जस्ट कीप वॉकिंग एंड एक्सप्लोरिंग दी स्ट्रीट्स। जस्ट लुक एट दिस स्ट्रीट, इट इज़ सो नैरो और बीच बीच में शॉप्स भी हैं। चलते चलते आप देख सकते हैं। ये बनारसी वॉलेट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, तो कुछ कुछ आप ख़रीद सकते हैं फॉर गिफ्टिंग पर्पज़। So after doing Kashi Vishwanath darshan, we came at Kal Bhairav temple एंड यहाँ पे मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के बाद काल भैरव जी के दर्शन करे जाते हैं, बिकॉज़ वो इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं, रक्षा करते हैं। सो यहाँ तो हमने वो भी, वॉकिंग डिस्टेंस है बट आप ई रिक्शा ले सकते हैं वहाँ जाने के लिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल से हार्डली 5 मिनट्स लगते हैं। फिर हम एक और टेम्पल जा रहे हैं, अभी हमने ई रिक्शा कर ली। And the name of this temple is Mahamrityunjay temple. Definitely, whenever you guys are in Varanasi, definitely you should come here. So this temple where people drink water from a well, Kuwa is there for its reputed healing and miraculous properties. The name is Mahamrityunjay Mandir, and the well within the temple premises is known as the Dhanvantari Coup, where I will be taking you now. And over here is the another temple. तो ये महामृत्युंजय टेम्पल है अंदर, where people were sitting and chanting. और यहाँ पे हवन वगैरह भी चल रहे थे, people were doing.
हवन यहाँ पे पंडित जी के साथ। यहाँ पे भी है। और काफ़ी बड़ा टेम्पल था यहाँ, बहुत लोग। सो दिस इज़ द वेल. So the water in the well is believed to have medicinal properties because Lord Dhanvantri, the divine physician in Hindu mythology and an avatar of Lord Vishnu, is said to have poured all his medicines and Ayurvedic herbs into it. So the devotees believe that drinking the water from this well can cure various illnesses and protect them from unnatural death. The well also said to contain water from 27 holy rivers, contributing to its sacredness. So we also drank water from this well. और यहाँ पे ये मुझे टेंपल, वहाँ से निकल के एक टेंपल दिखा, यहाँ पे शिवलिंग थे और अंदर गौ माता। ओ वाओ, मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ के। सो दे वर ऑल टाइड अप। और यहाँ पे बाहर ये इतना सुंदर सा मंदिर था। वेयर सो मैनी शिवलिंग्स आर देयर। बाहर नंदी जी बैठे थे, मुझे बहुत ही क्यूट लगा। आई स्टॉप बाय टू जस्ट के टू कम इनसाइड दिस टेम्पल। एंड उसके बाद हम आए शॉपिंग करने के लिए। ओके गाइज, सो द बेस्ट पार्ट इज़ बनारसी साड़ी ख़रीदने के लिए हमारे ई रिक्शा ड्राइवर ओनली सजेस्टेड कि जो उनके कारीगर होते हैं ना, जो बनारसी साड़ी बनाते हैं, दे आर ऑल मुस्लिम्स। सो वी केम एट दिस फैक्ट्री आउटलेट जहाँ पे ये बनती हैं साड़ियाँ, उन्हीं की ये आउटलेट है वहाँ, जहाँ पे वो बहुत रीज़नेबल साड़ीज़ देते हैं। सो आई टुक दिस साड़ी जो कि प्योर में है, प्योर बनारसी सिल्क। दिस वन आई टुक which was really nice and beautiful. And then I took this green साड़ी जिसमें ये गोल्डन वर्क है। सो दिस इज़ बनारसी सिल्क साड़ी और यहीं पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। दे मेक इट हियर। उसकी वजह से इसके प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल होते हैं। देयर आर ऑल मुस्लिम कारीगर्स ओवर हियर। सो वी केम हियर एंड वी परचेज 2 साड़ीज़ और वो हमारी वर्थ बाय थी। दे गेव अस सो मच डिस्काउंट। वैसे भी इनके प्राइसेस इतने हाई नहीं थे क्योंकि हमने एक दिन में बहुत कुछ एक्सप्लोर करा। वी विजिटेड डिफरेंट शॉप्स। सो द नेम ऑफ द शॉप इज़ भव्य बनारसी। वेन एवर यू आर हियर डेफिनेटली चेक आउट दिस प्लेस। इनकी स्टार्टिंग फ्रॉम 500 till 50,000 तक इनकी साड़ियाँ हैं। और इनका इंस्टाग्राम पेज भी है। सो वी बॉट 2 साड़ीज़। इट वॉज वर्थ कमिंग हियर। वेन एवर यू आर हियर, बनारसी साड़ी बनारस आके डेफिनेटली यू शुड बाय। फिर हम आ गए अपने होटल में विच इज़ बाय द गैंजेस एंड वी आर एन्जॉइंग सम ग्रेट टाइम इन द इवनिंग ऑन द टेरेस। और यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है। यू कैन अनवाइंड योर सेल्फ, यू कैन हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी और टी और स्नैक्स इन्जॉय कर सकते हैं आप यहाँ पे इवनिंग में। और अंदर इनका रेस्टोरेंट है जहाँ पे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बुफे मिलेगा। आई विल गिव यू गाइज अ क्विक टूर ऑफ इट इन द मॉर्निंग। सो इवनिंग में वी केम फॉर इवनिंग आरती एट अस्सी घाट। सो अस्सी घाट पे ही इवनिंग आरती होती है। दशाश्व में घाट पे इवनिंग में नहीं होती है, उनमें उसमें वहाँ पे सिर्फ अर्ली मॉर्निंग होती है। बट अस्सी घाट पे मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम होती है। इफ़ यू आर स्टेइंग एट अस्सी घाट डू कम एंड चेक आउट द इवनिंग आरती। सो हियर इज अ ग्लिम्स ऑफ इवनिंग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु भवद्शरेण सदा। सभी लोग तालियां बजाइए दोनों हाथों से।
माँ की आरती में। सो गाइस, बाहर ना रिवर का फ़्लो बहुत ज़्यादा था। वैसे तो बिल्कुल ये बाहर रिवर पे होती है, बट रिवर अभी आगे की साइड है, तो इन्होंने यहाँ पर आरती ऑर्गेनाइज करी हुई थी। वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा था, बट या इट वाज अ वेरी वेरी नाइस आरती। और 1 आवर की आरती होती है। आप पर्सनल आरती भी कर सकते हैं अगर आपको पंडित जी को आप बोल के, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। सो डेफिनेटली यू शुड कम हियर। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा गंगा आरती का। सो गाइज, आफ्टर द गंगा आरती हमने थोड़ा सा अस्सी घाट को एक्सप्लोर किया एंड वी फाउंड दिस ब्यूटीफुल क्यूट कैफ़े नियर बाय एंड जस्ट लुक एट दिस प्लेस, इट इज़ लुकिंग सो नाइस। और हमें ये स्ट्रीट पे ये कॉफ़ी के लिए कैफ़े मिला बहुत अच्छा। So the name of the cafe is, I'm going to tell you, and it is open like 24 hours. आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। They serve best sandwiches, Maggie and coffee. Everything is very nice here. और स्ट्रीट पे इतना अच्छा लग रहा था बैठ के, it was so happening.
एंड ये अस्सी घाट वाली स्ट्रीट हमेशा ही ऐसे हैपनिंग रहती है. सो ग्रे की बीन कैफ़े इज़ द नेम ऑफ दिस कैफ़े. अस्सी घाट पे आप लोग ज़रूर आए. एंड जस्ट लुक एट द वाइब्स हियर. इतना अच्छा लग रहा है सब कुछ. अब हम आ गए हैं मंदिर में, बजरंग बली के मंदिर में. और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है. सो गाइज़ वी आर एट संकट मोचन हनुमान मंदिर. आप जब भी वाराणसी आए यहाँ पे भी ज़रूर आए. इट इज़ वेरी वेरी फेमस. और क्योंकि हम सैटरडे के दिन यहाँ आए थे तो बहुत ज़्यादा रश था. एंड लुक एट द डेकोर, कितनी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है. और बिल्कुल अंदर से तो मैं फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी. आई वोंट बी एबल टू शो यू, बट गिविंग यू गाइज अ और बहुत फेमस है. आप लोग यहाँ ज़रूर आइएगा. तो हम रात को फ्री होके आए थे. उसके बाद हम आए माता के मंदिर, और जो कि बहुत फेमस है. तो माता के मंदिर के बाद हम थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए आए हैं काशी चाट भंडार. सो काशी चाट भंडार के बारे में आपने सुना होगा. इन्होंने केटर किया था अंबानीज़ की वेडिंग में, और इनका खाना बहुत फेमस था. और इनकी अभी भी इन्होंने, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, छोटी सी शॉप मेंटेन करी हुई है. और इधर जो बैठे हैं काउंटर पे, ही इज़ द ओनर, और वो अभी भी वहीं बैठते हैं. ही ओनली मेक्स द चाट एंड ऑल. सो वी आर गोइंग टू ऑर्डर द फेमस चाट्स जो भी इनकी हैं. और इनका मेन्यू मैं आपको दिखाती हूँ. दे हैव जस्ट 7-8 आइटम्स ओनली विच इज़ फेमस. तो पहले हमने गोलगप्पे ऑर्डर करे, और ये इनका मेन्यू है. दे हैव जस्ट 14 आइटम्स लाइक दही भल्ले, पापड़ी चाट, आलू टिक्की, इस टाइप की. सो ये 3-4 आइटम्स थे. एवरीथिंग वॉज लाइक सुपर डिलीशियस यार. और फिर मुझे समझ आया कि क्यों ये जगह इतनी फेमस है. बहुत ज़्यादा अमेजिंग था इनका खाना. एंड वी वांटेड टू कम बैक अगेन. बट नेक्स्ट डे तो हमारी ट्रेन थी वापसी की. बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. आप लोग ज़रूर आए यहाँ का खाना ट्राई करने. आया ना, अब ये आप टेस्ट करके बताओ कैसी है. बताओ. अब आयान बताएगा कैसे. नाइस. इज इट गुड? सो गाइस यहाँ पे जो स्टाफ के थे वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे थे अम्बानीज़ को. और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया. अच्छा ट्रीटमेंट मिला मुंबई. पैसा अपनी जगह, उनका स्वभाव अपनी जगह, बहुत मतलब नॉर्मल और अच्छे से बिना एसी पूरा का यहाँ बैठना, बातचीत करना बहुत बड़ी बात है. सो बेसिकली जहाँ हम बैठे थे तो ये भैया बता रहे थे कि नीता अंबानी जी बिल्कुल यहीं आके बैठी थी. एंड शी इज़ सो डाउन टू अर्थ. वो जो जितने भी बड़े होंगे बट दे वर वेरी नाइस टू देम. शादी में भी, यहाँ पे भी. और उसके बराबर में हमें मिली है बनारसी दुपट्टों की शॉप. और ये भैया से 150 रुपीज़ में दुपट्टे दे रहे थे. तो मैंने अराउंड 15 दुपट्टे लिए इनसे. बहुत सुंदर दुपट्टे थे इनके, कलरफुल. आपका उस पर डाल देंगे तो लोग आएंगे. और हाँ. ये कितने के बनारसी पर्स इस भैया? टाइप की शॉपिंग आप कर सकते हैं. सी इनके बनारसी ये कितने के पर्स पर्स? सुंदर है. और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है. आई थिंक ही वॉज रेडी टू गिव इन $200. तो आप वो सब ले सकते हैं. देन वी केम एट गुनगुन पान भंडार विच इज़ वेरी फेमस. ये भी हमारे ई रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि इट इज़ वेरी फेमस. एंड लुक एट द प्रेजेंटेशन, कितनी चीज़ें इज़ पुटिंग ऑन दैट वन पर्टिकुलर पान. खाने में तो इट वॉज सुपर डिलीशियस. मैंने ट्राई किया था. एंड जस्ट इट वॉज फॉर $50. एंड एवरीथिंग इज़ सो चीप. कुछ भी एक्सपेंसिव नहीं है यहाँ पर. 50 रुपीज़ में आपको क्या मिलेगा दिल्ली NCR में. एंड ही गेव दिस ब्यूटीफुल पान विद सच अ नाइस प्रेजेंटेशन. सो द नेम इज़ गुनगुन पान भंडार. डेफिनेटली ये व्हेनेवर यू देखो आर कमिंग बनारसी पान. आप यहाँ का बनारस आके, कहते हैं ना बनारसी पान नहीं खाया तो क्या खाया. सो डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट. So guys, that was our day 1 in Banaras. Now it is our day 2, next day, and we are up heading for breakfast in our hotel.
एंड मैंने कल आपको इवनिंग में ये यहाँ का टूर कराया था ऑफ दिस टेरेस. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द इनसाइड ऑफ दिस रेस्टोरेंट. And this is the breakfast buffet over here. Let me show you guys what all they have in the breakfast. So this is the tea coffee area, or limited options थे but quite nice. Sandwiches and fresh fruits, juices. Their parathas were very nice. वो fresh बना के लाए थे. Then their bambino was nice. They had porridge, pakoras and all. और आप बाहर भी बैठ सकते हैं, but right now it's quite hot, so we avoided sitting outside. But look at the view, it's so nice. और बाहर अस्सी घाट के दर्शन हो रहे हैं. It is amazing here. We had a great time at this hotel, so totally I'll recommend this hotel to you guys also whenever you come here. And guys, आपको कोई भी डिटेल्स चाहिए हो, do message me, comment करके आप मेरे से पूछ सकते हैं. So guys, today we are leaving Varanasi and we will be going back to our home in Gurgaon. So morning दर्शन करने के लिए फिर से हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल. और हम ले रहे हैं रिक्शा. यहाँ से रिक्शा सबसे बेस्ट ऑप्शन है वहाँ पर. ऐसी छोटी सिटीज़ में बेस्ट रहती हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है. एंड Ayan and his dad are doing training. I'm wearing this suit. और हम बैठ गए रिक्शा राइड पे. वी वर एक्चुअली इन्जॉइंग दिस रिक्शा राइड. एक्चुअली यहाँ पर आकर ओपन में सब कुछ इतना अच्छा दिखता है. तो काशी विश्वनाथ से दशाश्वमेध घाट बहुत पास में है और हम कुछ शॉपिंग भी करेंगे, वहाँ आसपास होती है. तो पहले जाते हैं हम यहाँ पर. ये शॉप हमने कल भी देखी थी और यहाँ से अयान को लेना था डमरू. जस्ट लुक एट दिस डमरू, इट्स लुकिंग सो नाइस. और आपको शिवलिंग वगैरह जो भी कुछ आपको स्टोन्स की जो भी शॉपिंग करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं. ये काशी विश्वनाथ मंदिर के जस्ट सामने स्टोर है इनका. दे हैव ऑल काइंड ऑफ स्टोन्स, क्रिस्टल्स, एवरीथिंग. और मुझे एक नंदी जी चाहिए थे तो वो मैंने यहाँ से लिए, और त्रिशूल अयान के लिए. तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से ली एंड एट अ वेरी रीज़नेबल प्राइस. बारगेन तो ऑफ कोर्स यू कैन डू. और इस टाइप की चीज़ें यहाँ बहुत अच्छी थी. सो गाइज़, ये पूरा टेंपल वाला एरिया है. काशी विश्वनाथ टेंपल के बाहर का एरिया है. और यहाँ पर ऑफ कोर्स फ़ोटोग्राफी वहाँ अलाउड नहीं थी तो मैं वहाँ की वीडियोस नहीं ले पाई. बट हाँ, हमने वो दर्शन करे वहाँ पे काफ़ी अच्छे से हो गए. और ये आसपास बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं, जैसे ये लस्सी की शॉप है और कचौड़ी आलू की भी बहुत थी रास्ते में. तो ये सब आप देखते हुए चल सकते हैं. और अब हम जा रहे हैं खाना खाने. केसरी का ढाबा बहुत फेमस है यहाँ पे, केसरी रेस्टोरेंट. तो हम यहाँ आए और यहाँ का ये डोसा बहुत फेमस है जो हमने ट्राई किया. और इसकी जो फिलिंग थी ना, दैट वाज वेरी डिफरेंट. उसमें उन्होंने ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल डाले हुए थे. ऐसा डोसा मैंने तो पहले कभी नहीं खाया. हर किसी की अपनी चॉइस है. लाइक फ्यू पीपल लाइक, फ्यू पीपल डोंट लाइक. बट मुझे तो ये डोसा पर्सनली बहुत अच्छा लगा. कुछ लोगों को सिर्फ प्लेन पसंद आता है. तो अब हम जा रहे हैं, हम आ गए अस्सी घाट पे. ऐसे थोड़ा एक्सप्लोर करने निकले थे अस्सी घाट. फिर बस हम अपने होटल जाएंगे एंड विल बी पैकिंग अप टू हेड बैक टू गुड़गांव. फिर हम आ गए पहलवान लस्सी जो बहुत फेमस है. तो ये सारे मैं आपको जगहें बता रही हूँ जो बहुत फेमस है, मस्ट ट्राई. पहलवान लस्सी आप ज़रूर ट्राई करिएगा. ये इतनी डिफरेंट थी. इसमें इन्होंने रबड़ी वगैरह डाली हुई थी लस्सी में, दही रबड़ी एंड ऑल. तो दैट वाज लाइक वर्थ ट्रायल. और अब हमारी आ गई है टैक्सी. हम जा रहे हैं रेलवे स्टेशन. सॉरी, हमने ऑटो बुक किया था क्योंकि टैक्सी टाइम ज़्यादा लगा रही थी और टाइम बहुत वेस्ट, डबल टाइम लग जाता है टैक्सी से. तो हमने कर लिया ऑटो एंड वी आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन. एंड गाइस, रेलवे स्टेशन का बेस्ट पार्ट है ये लाउंज. तो आप जब स्टेशन पहुँचेंगे तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा सा लाउंज था जहाँ पे आप लोग ज़रूर जाएं. बहुत अच्छा था. और हमारी ट्रेन ऑलरेडी लग गई है यहाँ पे, वंदे भारत ट्रेन में.
हम बैठ गए हैं और वो चल दी है। बट गाइस मैं आपको उस लाउंज के बारे में बताई थी, वो इतना अच्छा लाउंज वाराणसी रेलवे जंक्शन पे बनाया है और प्लेटफॉर्म 1 पर ही है। तो वंदे भारत भी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही लगती है। तो अब वेट कर, अगर आप जल्दी जैसे आप चेकआउट कर लेते हैं, आपकी ट्रेन थोड़ी लेट की है, तो इट्स बेटर आप वहाँ जाके आराम से वहाँ चिल कर सकते हैं। दे गिव गुड फूड ऑल्सो, पे करके आप ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत अच्छा उनका रहता है फूड एंड ऑल। एंड हम आ गए और हमें आते ही ट्रेन में भी स्नैक्स मिले। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन द स्नैक्स, क्योंकि इवनिंग की ट्रेन थी हमारी अराउंड 4-4:30 की। तो पहले वो स्नैक्स सर्व करते हैं, फिर लेटर इन द नाइट दे सर्व डिनर। सो ये सब ड्राई स्नैक्स थे। और ये टी है, इंस्टेंट टी। एंड देन जो इनकी ये कचौड़ी है, दैट वाज लाइक फ्रेशली मेड, और वो भी बहुत डिलीशियस थी। तो हमारा वंदे भारत का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहा। और जब हम आए थे वाराणसी, वे केम ऑन इंडिगो फ्लाइट, तो दैट वाज लाइक क्विक, बट ऑन आवर वे बैक वी आर टेकिंग द ट्रेन। तो वंदे भारत इज़ अ गुड ऑप्शन अगर आपको कहीं कम्यूट करना है बाई ट्रेन। तो देन दे गेव अस टी, एंड मुझे इनकी टी बहुत पसंद है, लाइक देयर इंस्टेंट टी। तो एटलीस्ट ट्वाइस आई टेक दैट टी एवरी टाइम आई ट्रैवल इन वंदे भारत। एंड जस्ट लुक एट दिस व्यू, दे हैव ब्यूटीफुल बिग विंडोज़, और आप आराम से बैठ के अपने स्नैक्स के साथ ये व्यू एंजॉय कर सकते हैं। हाँ सही है, अब सही हो गई, नहीं तो वो ब्लैंड लगती ज़्यादा पानी में, उनको पता होगा ना। एंड आई एम एन्जॉइंग माई टी विद दिस व्यू। और ये चीज़ केक हमने लिया था लाउंज से, जो स्टेशन वाला था। एंड इट इज़ वेरी हाइजेनिक, मतलब आप जाएंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं आप स्टेशन के वहाँ लाउंज में, आपको लगेगा एयरपोर्ट पे है। और पीछे है बिग स्क्रीन जहाँ पे नेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है प्रयागराज जंक्शन। तो स्क्रीन पे आपकी सारी स्पीड, ट्रेन की स्पीड एंड नेक्स्ट डेस्टिनेशन, कोई भी इन्फो रिलेटेड टू ट्रेन इसमें आती रहती है। और ये है पीछे डोर, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह हैं, उनका किचन एरिया है। एंड दिस इज़ द लेआउट ऑफ द ट्रेन। 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन है इनकी सीट्स का। और यहाँ पे इन्होंने चार्जिंग सॉकेट्स भी दिए हुए हैं बीच में, वेयर यू कैन चार्ज योर लैपटॉप्स, आईपैड्स और योर फोन्स। और ये इनका लेग रेस्ट है जहाँ पे आप यू कैन कीप योर फीट एंड रिलैक्स। स्पेस भी बहुत है आगे, so there is enough leg room for you to relax. चाय का हो जाए। So here comes my second round of tea. They keep coming with hot water, तो आप ले सकते हैं उनसे। तो हमारे सिर्फ 2 स्टेशन थे, लाइक वाराणसी से सिर्फ प्रयागराज पे वी हैड अ स्टॉप ओवर एंड देन कानपुर। सो जस्ट 2 स्टॉप्स थे एंड देन डायरेक्ट दिल्ली। और बीच बीच में ये कार्ड्स लेके आते हैं, सो इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, अगर आपको उनके स्नैक्स और डिनर में से कुछ नहीं लेना, यू वांट टू बाय चिप्स या इंस्टेंट नूडल्स एंड ऑल, तो आप यहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं।
सो गाइज़ वैसे तो ट्रेन जर्नी काफ़ी कंफर्टेबल थी बट ऑब्वियसली बैठे बैठे लास्ट के 2 आवर्स थोड़े से डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। एंड अब आ रहा है हमारा डिनर। सो आई थिंक 8 o'clock अराउंड दे सर्व्ड डिनर। और डिनर के क्या ऑप्शंस इन्होंने दिया है आई विल क्विकली शो यू गाइस। So in dinner option they had this dal tadka, and then they had curd, pickle, then shahi paneer is there, and let's see what is there in this container. Then jeera rice is there, dahi, pickle, pas after mint which they say, and then gobi aloo. Along with it they have given this harvest ki rotis. So this is the complete meal which looks quite good. Apart from these rotis, क्योंकि ये थोड़ी हार्वेस्ट की प्री मेड वाली होती हैं। वैसे they give freshly made rotis. I don't know now उन्होंने maybe they have like tied up with harvest। और बाद में आती है ये आइसक्रीम्स। देंगे बेटा देंगे, रुक जा। दो देंगे, ये ले तू भी ले। मैं नहीं खाऊंगा। सो गाइज देन वी रीच न्यू दिल्ली स्टेशन और हमने बाहर अपनी कैब बुक करी हुई है। एंड आई होप यू गाइज एन्जॉयड माई वीडियो। और अगर आपको पसंद आई हो देन हिट दैट सब्सक्राइब बटन और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड वी बुक BYD बिकॉज आई सन वांटेड टू गो ऑन BYD। तो हम जा रहे हैं। इट वॉज ऑलरेडी वेटिंग एट न्यू दिल्ली स्टेशन एंड विल बी हेडिंग बैक टू गुड़गांव। And I hope you liked my video and I'll see you guys in my next vlog. Until then, bye bye, take care and good night, and don't forget to subscribe to my channel for more of such videos and stay tuned for my next vlog. Bye bye.